we have understood how the dicot embryo has developed. So, if you are talking about dicot embryo, you should be remembering all the parts of a seed. Then, when you talk about every part, this is the dicot embryo, which is showing two cotyledons, 1 and 2, right? Cotyledons. Inside the cotyledon, if you observe, there is a small plantlet, inside it. So that has been divided. जो upper part है, it's called epicotyle, और जो lower part है, उसको बोलते हैं hypocotyle. So it is divided into two sections. Upper is epicotyle and lower is hypocotyle. And extreme to it is the radicle that develops into the root and root cap. Then the outer cover is called as the seed coat, and this whole structure is the embryo that has developed, which we have understood dicot embryo in capsula. So this diagram is already drawn by you people, there won't be any problem. Here now I'm really confident that you can draw this seed. आप आराम से dicot seed का structure बना सकते हो. एग्ज़ाम में आता है draw the structure of dicot seed, you can draw it. You know why seed is formed? Let's understand that, and then we'll come to the topic of development of monocot embryo. If seed is there after fertilization, you remember how the process of fertilization happened with the development of pollen tube, which has delivered male gametes into the female embryo, or you can say embryo sac, which has brought in the formation of seed. तो fertilization के बाद क्या होता है? Seed and fruit formation. तो seed दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर two cotyledons होते हैं. This is the one which two cotyledon called as dicot, whereas the seed that has got single cotyledon, they have a specific name. उस single cotyledon का नाम है scutellum. जब डाइकॉट होता है तो हम लोगों ने वर्ड कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिया, बट जब एक ही कॉटलिडन होता है वी यूज़ द वर्ड स्क्यूटलम. यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इजी. ओके, कोई मुश्किल नहीं है. यू लर्न स्क्यूटलम. ओके, if it is two cotyledons, there is no specific name, you call it as dicot with two cotyledons. But if it is only one cotyledon, single coat, जिसे हम बोलते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट के जो एक सिंगल कॉटलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटलम. नाउ सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न हियर इन दिस डायग्राम. जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, पूरे एंडोस्पर्म को यूज़ नहीं किया. जब एम्ब्रियो बनता है, लेट्स से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यू रिमेंबर द पोलर न्यूक्लियर फ्यूजेस विद द सेकेंड मेल गैमेट टू फॉर्म एंडोस्पर्म, राइट? तो जो एंडोस्पर्म है वो यहाँ पे it is there, it is not used completely. So this is an example of endospermic seed. मतलब यहाँ एंडोस्पर्म है, बचा हुआ है. सो व्हाट अबाउट एम्ब्रियो? एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर है जो आपको याद करने हैं? एक तो प्लिम्यूल रीजन है. अब प्लिम्यूल को जो कवर करता है उसको हम बोलेंगे कॉलियोप्टाइल. फिर है रेडिकल रीजन. रेडिकल को जो कवर करता है जो सेल है उसको बोलते हैं कॉलोरिजा. इट्स वेरी इजी. कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल. P is there, so it is a covering of plumule. दूसरा कॉलोरिजा, R is there here in the center. Okay, so that is a covering for radical. So these are the words which you have to remember, very commonly asked for your entrance examination. So when you talk about, you can now draw easily this diagram of a monocot seed. Example में आप याद रखो maize. Now as you have already studied dicot embryo का development, you have learned the structure of monocot. तो आपको जो याद रखना है वो यही नाम है, स्क्यूटलम, कॉलियोप्टाइल, प्लिम्यूल, रेडिकल एंड कॉलोरिजा, राइट? बाकी तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ लेयर कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, दैट्स अ कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म.
अंडर द सीड कोट रीजन. सीड कोट के नीचे होता है एलिरोन लेयर. नाउ लेट्स गो टू द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो. मोनोकॉट एम्ब्रियो का जैसे हमारा डाइकॉट था, वहाँ से जब तक ऑक्टेंट शेप बना, दैट मीन्स formation of 8 cell stage, everything is same, there is no change. Now what happens here in the upper diagram, after octant is formed, suspensor is developed. okay, यहाँ पे सस्पेंसर डेवलप नहीं होते, मल्टीप्लाई नहीं होते. सस्पेंसर वैसे का वैसा रहता है टिल द एंड. ओके, सी द सस्पेंसर इज नॉट मल्टीप्लाइंग. It is just one cell, again one cell getting reduced. So this is the second thing that you have to remember. लेकिन जो डाइकॉट था उसमें देखो सस्पेंसर ने हाइपोफाइसिस बनाया, सस्पेंसर ने बहुत सारे सेल्स बनाए, एंड दे वर गिविंग राइज टू लॉट मेनी पार्ट्स, राइट. सो सस्पेंसर वॉज डिवाइडिंग इन द डाइकॉट एम्ब्रियो. लेकिन जो मोनोकॉट का डायग्राम है उसमें ऑक्टेंट स्टेज तक एवरीथिंग इज जस्ट द सेम. हाँ ठीक है, एक और चीज़ है, ऊपर के डायग्राम में सस्पेंसर नीचे था, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा घुमा के बनाया. कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यही डायग्राम फिर से इन्होंने घुमा भी दिया, देखो इट इज़ ट्विस्टेड, इट इज़ टर्न्ड. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर हियर, व्हेन सेल्स आर डिवाइडिंग, सस्पेंसर वैसे का वैसे, कोई चेंज नहीं आया, बट जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं दे आर मल्टीप्लाइंग, दे आर फॉर्मिंग द 4 मेन थिंग्स, दैट इज़ द प्लीम्यूल, कॉटलिडन, ओके, देन हाइपोकोटाइल, रेडिकल. सस्पेंसर वैसे का वैसा वहाँ पे है, ठीक है. और फिर आपको ये डायग्राम याद करना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. जो एक कॉटलिडन है वो उसको हम स्क्यूटलम बोलते हैं, और ऊपर के लेयर को कोलियोप्टाइल बोलेंगे, ये प्लीम्यूल का रीजन है. देन द रेडिकल को कवर किया हुआ सेल जिसको हम बोलते हैं कोलोरिजा, राइट. एंड वन मोर रीजन इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड द एपीब्लास्ट रीजन, दैट्स द एक्सटर्नल पार्ट. Now you can easily draw the structure of monocot embryo. So you are thorough with this chapter because जो main diagrams थे वो आपके बिल्कुल टिप पे हो गए हैं. You can easily score marks if the questions are based on the diagrams. Now there are certain questions which you should be learning. One is, what is the function of coleoriza and coleoptile? What do they do? So you can learn it from here. Scutellum का नाम मतलब क्या है? It is the cotyledon, single sheet cotyledon that we have. Then what is coleoptile? It is the protective sheet of the plumule. Plumule की ऊपर की layer को हम बोलते हैं coleoptile, and the protective layer around radical it's called coleoriza. So at the end, after fertilization, ovule क्या बन जाता है? Seed बन जाता है. ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है. सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपन्स टू ओव्यूल एंड व्हाट हैपन्स टू द ओवरी. ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. ये वाला हिस्सा हमने ऑलरेडी कर लिया है. जब एंडोस्पर्म रहता है तो हम उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक. जब एंडोस्पर्म ख़त्म हो जाता है, यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो से, हम उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, राइट. Now we'll go to the rest. Pericarp also, you know, the layer on the fruit. Okay, now next topic is significance of seed and fruit formation. What is the benefit of having seed and fruit? First point, the fruit provide nourishment to the developing seed. तो अगर फ्रूट बनता है उसके अंदर, वो क्या करता है? इट इज़ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द सीड दैट इज़ डेवलपिंग इन इट. सीड के अंदर क्या होता है? यू हैव द स्मॉल प्लांट, वेरी स्मॉल इन द फॉर्म, यू हैव सीन नो, पहले इस डायग्राम में भी, आई जस्ट शो यू वंस अगेन. दिस इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर हियर. आई डोंट नो इफ़ यू हैव ओपनड, अगर आपने मैंगो के सीड को ओपन किया है तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द कॉटलिडन्स ऑफ मैंगो. एक्सट्रीम एंड में ऐसा एक एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट डेवलप्स. अगर आप उस सीड को मिट्टी में यू नो dig it in the soil, that small embryo will grow into a plant.
So first thing, fruit provide nourishment to the seed. Number 2, fruit protect the seed in immature. फ्रूट, एक तरह से फ्रूट का मतलब क्या है, वो जो फ्लैशी लेयर, राइट. इफ़ यू टॉक अबाउट मैंगो, तो अगर हम मैंगो का सीड देखेंगे तो मैंगो के सीड में यू हैव द एम्ब्रियो, बट द आउटर लेयर इज़ कवर्ड बाय द फ्लैशी एरिया. सो इफ़ एनीथिंग हैपन्स, तो सिर्फ आउटर लेयर को कुछ होगा ना, सीड के अंदर के एम्ब्रियो को कुछ नहीं होगा. तो सीड के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कौन करता है? फ्रूट प्रोटेक्ट करता है. सो सेकेंड पॉइंट इज दैट द fruit protects the seed in immature condition. Seed is still growing, right? Then the third point, seed serves as an important propagating organ of plant. अब seed कहीं पे भी गिर जाते हैं, अगर वो अच्छी तरह मिट्टी के अंदर डिग हो जाते हैं, तो it can grow. It has an ability to grow into a new plant. So it is a propagating organ. New plant में convert हो सकता है. So it is called as a propagating organ. Fourth important point, seeds and fruits develop special devices for their dispersal. मतलब they have, suppose for example, अगर आप देखोगे कुछ सीड के ऊपर फर लाइक स्ट्रक्चर होगा. लाइक इफ यू हैव दिस, here you have, this is one kind of seed in which there would be thin hair like structure, जो जिसके वजह से वो easily फ्लोट होते हैं एयर में. कुछ सीड ऐसे हैं जिसके ऊपर स्पाइंस होते हैं, जो कि एनिमल्स की बॉडी पे अटैच हो जाते हैं. जहाँ वो जाते हैं इट फॉल्स डाउन एंड ग्रोज इनटू फ्रूट, राइट. देन कुछ फ्रूट, कुछ सीड जो होते हैं वो लोटस में जैसे होते हैं. दे आर लाइक very small, they are arranged in such a way that they can be protected from the water's destruction. उसको ऐसा नहीं होता कि पानी टच होता है. they are covered in this small chamber like structure, and when it has been pollinated, this grows and it has been dispersed by the water itself. And some seeds, what happens, उनका जो ऊपर का layer होता है, it burst. when they burst, they throw the सीड इन द सराउंडिंग रीजन एंड वो नीचे गिर के ग्रो करता है, राइट. सो दीज वेर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन दैट, और वी कैन से स्पेशल डिवाइसेस दैट आर बीन डेवलप्ड बाय द सीड्स फॉर डिस्पर्सल. दे कैन ईजली स्प्रेड. तो 4 points as benefit of seed and fruit formation is clear. लेट्स सी व्हाट इज़ डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी का मतलब है इनएक्टिव स्टेज. आप लोगों के किचन में कितनी सारी पल्सेस हैं, दाल है, जो कि हम लोग कितने महीनों के लिए वी कैन एक्चुअली स्टोर देम. वाई कैन वी स्टोर देम ईजिली? बिकॉज दे हैव एन एबिलिटी, और उनकी एक स्पेशल क्वालिटी है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अरेस्ट. मेटाबॉलिक अरेस्ट मतलब उसके अंदर की एक्टिविटी रुक जाती है. और वो कब तक होती है एक्टिविटी रुकी हुई? जब तक उसको एक फेवरेबल कंडीशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने मटकी उठाई और पानी में डाल दिया एंड यू रिमूव द वाटर. व्हाट हैपन्स? नेक्स्ट डे जो मटकी होता है उसके अंदर स्प्राउट दिखता है. सो दैट मीन्स जो सीड के अंदर जो छोटा सा एम्ब्रियो था, दैट ग्रोज इनटू द प्लांटलेट. छोटा सा, यू हैव द रेडिकल कमिंग आउट फर्स्ट, एंड देन इफ़ यू सो देम, अगर आप मिट्टी में डाल दोगे, इट ग्रोस, राइट. सो तब डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसे प्रॉपर वाटर दिया. जब पानी नहीं था, इट वॉज स्टोर्ड. हम लोग महीनों महीनों तक अपने किचन में सीड्स को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, दैट इज़ मेटाबॉलिक अरेस्ट. मेटाबॉलिक अरेस्ट का मतलब होता है डॉर्मेंसी. So basically question can be asked, what is dormancy? It is a state of metabolic arrest that facilitates the survival of organism. ऑर्गेनिज्म तो अंदर सेफ ही है जब तक एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं हो. जब आप उसे पानी देते हैं एंड यू कीपिंग इट इन अ प्रॉपर कंडीशन, देन इट ग्रोज, राइट. दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. नाउ लेट्स से द नेक्स्ट topic we have apomixis. Apomixis, or we can say, we can continue this in our next lecture.